Hello student, welcome to chemistry class. As you know that we have started third chapter, classification of element and periodicity. In the earlier class we have discussed about the how the classification started, what was the need of classification. Then we discussed history of classification, and in which we discussed about the Dobrenier triad and octave law and the limitation of octave law. There are so many other methods of classification given by other, but we will study main. Now today we will see the Mendeleev's periodic table, and it was based on the Mendeleev's periodic law. Okay, so student, today's our topic is Mendeleev's periodic table. Okay, this table was made by Mendeleev. Okay, and it was some different work from the octave. Okay, as we know that in octave Newland arrange element on the basis of octave, that is musical note, 8 musical note. Same criteria is followed by Mendeleev, but he succeed in the making periodic table only because of his presence of mind. He left all those elements, space for all those elements which were not discovered, and this way he following the atomic weight rule, he constructed the complete periodic table. That's the mean his periodic table was based on Mendeleev's periodic law, which states that if we arrange element in increasing order of their atomic weight, then we see that first, and you can say that each 8 element have same
properties. Same properties. Okay, it means it means on arranging elements in increasing order of their atomic weight then after certain interval their property repeated. Okay, this was the Mendel's periodic law. Okay, और एक शब्द में हम कह सकते हैं कि मेंडली पीरियोडिक law is based on the atomic mass and chemical physical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. पहले इसको समझ लेते हैं. मेंडलीज पीरियोडिक लॉ क्या है, इसी पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, जिसके अनुसार अगर हम एलिमेंट को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट तो हम देखते हैं कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है सेम होती है. इसका मतलब होता है कि अगर एलिमेंट को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मास के या वेट के, तो सर्टेन इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिपीट करेगी. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic masses, okay, or atomic weight. This is the final point कि जो एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मास की, यानी कि हर एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है रिपीट होगी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा. ठीक है. एट द टाइम ऑफ मेंडलीव Mendel's 63 elements were discovered. Only 63
elements were discovered. 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। अब इन्हीं 63 एलिमेंट को अरेंज करना था, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया। हैव यू नोटेड दिस? ओके, थैंक यू। हम आगे अब पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। तो मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट्स खोजे गए थे। अब इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। पहले पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स periodic table have 7 horizontal rows, 7 horizontal rows which are known as period, which are known as period, as period, and 8 vertical columns, vertical column which are known as which are known as group. Okay, which are known as group. And zero group was added for inert gases, later on in modified Mendeleev's periodic table. ओके, तो इस तरह से जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया 7 हॉरिजॉन्टल रो में और 8 वर्टिकल कॉलम में। और वर्टिकल कॉलम को नाम दे दिया गया ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दे दिया गया पीरियड। ओके, तो एलिमेंट को पीरियड में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के बेस पे रख दिया गया। और जहाँ जहाँ पे चीज़ें नहीं मिली, जहाँ पे एलिमेंट नहीं मिले, वो चीज़ें जो है कि उनके लिए जगह छोड़ दिए गए और उनकी सारी प्रॉपर्टी बता दी गई। और इस तरह से मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो लेट नाउ वी विल सी हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 7 हॉरिजॉन्टल रो, 8 वर्टिकल कॉलम एंड दैट इज 0 ग्रुप। ओके, और ये याद रखिएगा कि जो 0 ग्रुप है
लेटर ऑन बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि मेंडलीव के समय में भी इस जीरो ग्रुप एलिमेंट के बारे में कुछ क्लियर नहीं था, ठीक है। और न तो इनर्ट एलिमेंट के बारे में, जो कि बाद में पता लगा। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, क्या क्या इम्पोर्टेंस है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को, इसको हम देखेंगे। एक तो हमें इम्पोर्टेंस ये मिला कि वी कैन स्टडी एलिमेंट्स वेरी सिस्टमेटिकली, वी कैन स्टडी एलिमेंट्स वेरी सिस्टमेटिकली। हम सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स को कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पहला तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, पहला इम्पोर्टेंस था स्टडी ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या था, हम जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाए तो कुछ जगह छोड़ दिए, और उस जो जगह छोड़ी उन्होंने उसके बारे में पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया था। मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखते गए 63 तक। अब उनके बीच में जो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट थे, मीन्स जो एटॉमिक मास प्रेजेंट नहीं था, उसकी पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि इस जगह पे वही एलिमेंट आएंगे, कोई और एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि सभी साइंटिस्ट सोचने लगे कि मेंडलीव ने ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे पता कि इस वर्ल्ड में इसी एटॉमिक वेट का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एक रिसर्च का जो है कि एरिया भी बना दिया पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त जो उन्होंने जगह छोड़े, वो जगह एक रिसर्च का एरिया हो गया, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, prediction of new elements and their properties he left space okay, left space, he left space for element yet not discovered, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल we will see here example, he left space for gallium
Ga and germanium Ge and named them these elements Ica, aluminium, and Ica silicon to silicon respectively. ओके, तो उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया और एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को बता दिया कि इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, और इस बेस पे जो है इन एलिमेंट्स को खोजना बहुत आसान हो गया। तो पहला फ़ायदा हुआ कि स्टडी करने में फ़ायदा हो गया, एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली लगे हुए थे। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि मेंडलीफ ने बहुत सी जगह छोड़ दी थी और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को उन्होंने मगर बता दिया था। अब अगर टारगेट हमें पता है तो उसको अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पहले ही जैसे एग्जाम्पल के रूप में गैलियम और जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ दी और सारी प्रॉपर्टी बता दिया, और बताने के बेस पर बाद में जो है कि जर्मेनियम और गैलियम की डिस्कवरी हुई, जबकि नाम भी इन्होंने दे दिया था। गैलियम के लिए इक्का एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम के लिए इक्का सिलिकॉन के रूप में। ठीक है, तो ये फायदे थे पीरियोडिक टेबल के। लास्ट ये था कि एटॉमिक मास का जो है करेक्शन भी हो गया। एटॉमिक मास करेक्शन, एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट elements on the basis of their prediction expected position and properties ठीक है। तो तीन फायदे हमें हुए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से। एक तो हम एलिमेंट को स्टडी करना शुरू कर दिए सिस्टमेटिकली। दूसरा ये हुआ कि जो स्पेस थे वो खाली थे, जहाँ पे वो रिसर्च का एरिया बन गए। उस बेस पे नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, उनको सेम वही प्रॉपर्टी मिली, वही प्रॉपर्टी के बेस पे उनका नेमिंग हो गया। इसके बाद तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स के जो है कि एटॉमिक मास को करेक्ट कर पाए और उन्हें एक प्रॉपर पोजीशन मिला उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो ये सारे थे पीरियोडिक टेबल के फ़ायदे।
लेकिन कुछ यहाँ पे डिमेरिट्स भी हैं। फ़ायदे जहाँ पे थे वो डिमेरिट्स भी थे। डिमेरिट्स के कारण भी थे, जो कुछ तो ऐसे डिमेरिट्स थे जो आज भी उसी तरह पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिमेरिट थे जो कि उन्हें पता ही नहीं थे, जिसकी बेस पर उन्होंने, अगर वो पता होती सारी चीज़ें तो वो उसको शायद सही कर लेते। जैसे आइसोटोप्स के बारे में उस समय उतना डिस्कवर नहीं हुआ था, सब एटॉमिक मास के बेस पे था, तो सिमिलर एटॉमिक मास के बेस पे प्रॉपर्टीज़ वाले एक जगह रख दिए, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले थे वो एक जगह हो गए, और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले डिफरेंट हो गए। तो बाद में जब आइसोटोप की जानकारी हुई तो उसको करेक्शन किया गया, और करेक्ट करके एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल बनाई गई। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।